ओम शांति। आज के बाবার 30/12/2020 মুরলি। আজকে বাবা মুরলিতে বিশেষ মহাবাক্য বলছেন যে বাবা এখন সঙ্গম যুগে আমাদেরকে সততার বরদান দিচ্ছেন। তো বাবা বলছেন তোমরা এমন কোনো কিছু কাজ করো না যেটা মিথ্যার উপরে আধারিত। তোমরা সব ব্যাপারে সত্যের আচরণ করো, সৎ কথা বলো, মিথ্যা বলো না। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমাদেরকে বারবার একটা প্র্যাকটিস করতে হবে, সেটা নিজেকে আত্মা দেখো, বারবার নিজেকে ভাবো আমি আত্মা, আমি আত্মা, আমি আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি, আমি আত্মা এই কাজ করছি, আমি আত্মা হাঁটছি। তো এত কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তারপরে তোমাদের আত্মিক স্থিতি আসবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে ভক্তি মার্গের কোনো কর্মকাণ্ড দ্বারা কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বলছেন যে 2500 বছর থেকে মানুষ গীতা জ্ঞান শুনেছে, কিন্তু এখন সঙ্গম যুগে তোমরা সবাইকে জানাচ্ছ যে গীতা জ্ঞান কৃষ্ণ দেননি, ভগবান দিয়েছেন। তো এই ধারণা পাল্টাতে তো একটু সময় লাগবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে হঠযোগীরা বিভিন্ন রকম যোগ শেখায় আর সেটাকে তারা রাজযোগ বলে, কিন্তু সেটা তো রাজযোগ নয়। রাজযোগ তো একমাত্র শিব বাবাই শেখাতে পারবেন। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে তোমরা যেখানে সেবা করছো তো সবার আগে দেখো যে তারা বাবার উপরে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে কি না। তো বাবার উপরে যদি নিশ্চয় বুদ্ধি না হয়ে থাকে তাহলে ফালতু ব্যাপার যদি প্রশ্ন করে তো সেটা তোমরা শোনো না। অনেকেরা বাবাকে জিজ্ঞেস করে যে বাবা তুমি ব্রহ্মা বাবার মধ্যে কি সারাদিন থাকো, 24 ঘন্টা থাকো, কখন আসো কখন যাও? তো বাবা বলছে এসব প্রশ্ন করো না, তোমরা আগে বাবাকে স্মরণ করো, তোমাদের আসল ইনকাম হবে বাবাকে স্মরণ করলে। বাবা বলছেন সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণের যখন রাজত্ব হবে তখন অন্য কোনো ধর্মের রাজত্ব নেই, তারাই সারা বিশ্বের উপরে মালিক হয়ে থাকবে। তো এইভাবে বাবা অনেক সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট বলেছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে सुनब। मीठे बच्चे, सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। आज के बाबा विशेष बोलছেন যে সঙ্গম যুগে বাবা তোমাদেরকে সত্যতার বরদান দিচ্ছেন, তাই তোমরা কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারো না। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে নির্বিকারী হওয়ার জন্যে তোমাদেরকে কি পরিশ্রম করতে হবে। তো উত্তরে বাবা বলছেন आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। বলছেন আত্ম অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে, নিজের ভ্রিকুটির মাঝখানে আত্মাকে দেখার অভ্যাস করো। আত্মা হোকর আত্মা সে বাত করো, আত্মা হয়ে আত্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আত্মা হোকর শুনো, দেহ पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। বাবা বলছেন কারো দেহের উপরে দৃষ্টি রাখো না, এটাই হচ্ছে मुख्य परिश्रम। इसी मेहनत में बाधा पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। বলছে যতটা সম্ভব এটা অভ্যাস করো যে আমি আত্মা, আমি আত্মা। তো এটাতেই মায়া তোমাকে বাধা ঢালে, আবার এটাতেই তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। बाबा বলছেন তোমরাই পূজ্য ছিলে আবার তোমরাই पुजारी হচ্ছো। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया है कि यह तो बिल्कुल राइट बात है।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। बाबूजी काउके ज्ञानेर सागर बोला जाबे ना, बाबा छाड़ा श्री कृष्ण केও ज्ञानेर सागर बोला जाबे ना। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। यह वंडरफुल बात है ना। बाप बिगर कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहाँ तुम पुजारी नहीं बनते हो। बाबा बोलছেন যে সাধু সন্তরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হঠযোগ তারা শেখায়, হঠক্রিয়া শেখায়, তো সেগুলোকে রাজযোগ বলা হবে না, সেটা ভক্তি মার্গ। বলছে সত্যযুগে কোনো রকম ভক্তি মার্গের কর্মকাণ্ড থাকবে না। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता। अब नहीं है वही पूज्य, फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। बाबा बोलছেন যেটা সঙ্গম যুগ চলছে, তো এই সঙ্গম যুগ হচ্ছে গীতার যুগ। তো গীতাতে একদম রাইট কথা বলা হয়েছে যে ভগবান এসে অনেক ধর্ম বিনাশ করে এক নতুন ধর্ম স্থাপন করছেন। তো এখন সেই সময়টাই চলছে, স্বয়ং ভগবান এসেছেন এবং বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন আমাদেরকে। तो जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो, 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। बाबूचन भक्ति मार्गे 2500 वर्ष থেকে भारतवासीरा गीतार भगवान कृष्ण के मेने एसेछे। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। बोलছেন 2500 বছরে তাদের যে ধারণা যে গীতা জ্ঞান কৃষ্ণ দিয়েছেন, সেটাকে একটা জন্মে বা এই সঙ্গম যুগে এই ধারণাকে পুরো ডিলিট করা তো সময় তো লাগবে। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते, कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा। बोलছেন যারা পাক্কা নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারা, তারা যখন জ্ঞান বোঝাবে কাউকে তো তাদের মনে কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু যাদের নিজেরই নিশ্চয়তা আসেনি, তো তারা অন্যকে যখন জ্ঞান শোনাবে তখন তাদের মধ্যে একটা ভয় থাকবে যে তারা কিছু খারাপ না নিয়ে নেয়। निडर तो अभी हुए नहीं हो, निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। बाबूजी दुनियाते केउ जाने ना जे माया के की करे जय करते হয়, এখন তোমরা এটা জেনে গেছো। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। बोलছে गीताते आत्मार पुरो ज्ञान आछे जे आत्मा के कोनो शस्त्र भेद करते पारे ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी। और हे अर्जुन तुम्हें निजे की आत्मा भावो। तो हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं
गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। बाबा বলছেন নিজে নিজের সংসারে থাকো, সবাই সেন্টারে এসে বসলে তো হবে না, सर्विस करनी है, सेंटर्स भी खोलने हैं, तुम हो सेलवेशन आर्मी। सब भाई বোনদেরকে বাবা বলছেন যে সেবাও করতে হবে, সেন্টারে খুলতে হবে। तो ईश्वरीय मिशन हो ना, पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो, तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है, जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं, बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं करता। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে যখন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব হবে তখন সেখানে অন্য কোনো ধর্ম রাজত্ব করতে পারে না, এজন্য তাদেরকে বিশ্বের মালিক বলা হবে। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने, अभी हम सो देवता बनते हैं, फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो, चित्र रॉन्ग कौन से हैं राइट कौन से हैं वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो, यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है, भंभोर को आग लगनी है। বলছেন রাবণ রাজ্য এটা এখন পুরো আগুন লেগে যাবে। শাস্ত্রে দেখিয়েছে না যে হনুমান রাবণের লঙ্কাকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, তো সেরকম বাবা বলছেন যে কলিযুগ দুনিয়া রাবণ রাজ্য এটা বিনাশ হবে। तो भंभोर को आग लगनी है, भंभोर विश्व को कहा जाता है, अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वही राइट है, फिर यह लक्ष्मी नारायण बस, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं, तो महावीर बन रहे हो। मंदिर में कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है, अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाप कहते हैं महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने हाथी की सवारी बना दी। तो यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाप समझाते जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। বলছেন ভালো ভালো মহারথী বাচ্চাদেরকেও মায়া অনেক সময় গ্রাস করে নিচ্ছে। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है, तो यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कलब कलब बाप कहते काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असूल तुम हो आत्माएं, आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है, यह याद रखना पड़े। বলছেন বাস্তবে তোমাদের স্বরূপ হচ্ছে তোমরা আত্মা, তো আত্মাই আত্মার সঙ্গে কথা বলছে, আত্মাই কান দ্বারা শুনছে, এটা মনে রাখতে হবে। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं, असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। বলছেন আত্মিক স্বরূপে আমরা সবাই ভাই ভাই, তারপরে যখন ব্রহ্মা বাবার সন্তান ব্রহ্মা কুমারী ব্রহ্মা কুমার তখন আমরা भाई बोन। सुनाना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए, हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? हाँ मैं आत्मा सुनता हूँ। বলছে যখন কারোর সঙ্গে কথা বলো তখন জিজ্ঞেস করো হে আত্মা ভাই শুনছো, তখন সে আত্মা ভাই জবাব দেবে যে हाँ আমি শুনছি। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है,
मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है। तो यह आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है। बाबा একটা বাচ্চাকে মনে করছেন যিনি বিকানেরে থাকেন, তো বাবা বলছেন সে সব ব্যাপারে আত্মা আত্মা বলে যে আমি আত্মা এই হাত দ্বারা লিখছি, আমি আত্মা এই চিন্তন করছি, আমি আত্মা এটা বলছি। তো বাবা বলছেন যে এইভাবে বারবার নিজেকে আত্মা ভাবতে ভাবতে আত্মাভিমানী স্থিতি হয়ে যাবে। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। तो जैसे बाबा कहते रूहानी बच्चे तो भ्रिकुटी तरफ देखना पड़े, आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नज़र आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है, शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। तो बुद्धि में यह ज्ञान है हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था, यह देह मिली है पाठ बचाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। बाबा बोलছেন যে নাম আত্মার হয় না, নাম দেহের হয়। তো যখন একটা বাচ্চা জন্ম নেয় তখন তার দেহের নাম পড়ে। তো বাবা বলছেন आत्मार কোনো नाम থাকে না। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। यह नाम रखा है पाठ बजाने, नाम बिगर तो कारोबार चल न सके। वहाँ भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहाँ कोई विकर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। বলছেন সত্যযুগে এমন কোনো কাজ তোমরা করবে না যাতে নতুন করে বিকর্মের খাতা তৈরি হবে। माया का राज्य ही नहीं है। तो अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापिस जाना है। यह तो तुम्हारे पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सत्युग त्रेता में, वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हैं। कर्म तो वहाँ भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। बाबा बोलছেন সত্যযুগের কর্ম অকর্ম হয়ে যাবে। अब बाप कहते हथ काटे आत्मा याद बाप को करती है। सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। বলছে কলিযুগে মানুষ তম প্রধান হয়ে গেছে, জন্য তাদের কারোবার একদম খারাপ হয়ে গেছে, মানে মিথ্যার উপরে আধারিত আছে। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। বলছেন সত্যযুগে যা কিছু তোমরা কর্ম করবে সেটা সত্যের উপরে আধারিত হবে, কোনো মিথ্যা থাকবে না। सत्य का वरदान मिल जाता है, विकार की बात ही नहीं, कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। বলছে সত্যযুগে কোনো রাজকাজ বা রাজ্যসত্তা চালাতে কোনো রকম কারোবারে মিথ্যার আধার নিতে হয় না। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहाँ यह बातें होती नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। বাবা ডাইরেক্টলি বলছেন যে ভক্তি মার্গের যজ্ঞ তপ পুজো পাঠ করে কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারে না। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको शतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं।
दूसरा कोई यह ज्ञान दे न सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। বাবা বলছেন যে অনেকেরা মানে জলে হাঁটতে শিখে যায় বা মানুষ এখন চন্দ্রমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তার মানে এটা না যে তারা রাজযোগের অভ্যাস করেছে বা রাজযোগ দ্বারা এগুলো চমৎকার তারা করতে পারছে। বলছে রাজযোগ দ্বারা তো মানুষ নর থেকে নারায়ণ হবে, ওই চন্দ্রমা পর্যন্ত যাবে বা জলে হাঁটতে শিখবে, সব राजयोगेर चमत्कार नय। परंतु वह कोई राजयोग नहीं है, नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल पहले भी यह समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी में भी संशय आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। বলছে অনেক বড় বড় মহারথীর মধ্যেও সংশয় চলে আসছে, মায়ার একটুখানি তুফান আসলেই দেহ অভিমান চলে আসছে। तो यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछे आप क्या सदैव हो या चले जाते हो, बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हो ना। बाबा बोलছেন অনেকেরা মনে মনে প্রশ্ন রাখে যে শিব বাবা সবসময় কি ব্রহ্মা বাবা শরীরের মধ্যে থাকে, বা আমরা যদি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করছি তো জবাব কে দিচ্ছে, ব্রহ্মা বাবা না শিব বাবা। তো বাবা বলছেন অনেকেরা জিজ্ঞেস করে যে বাবা তুমি কি মাঝে সাঝে চলে যাও ব্রহ্মা বাবার শরীর ছেড়ে, তো এই সব কথা তো বাবাকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। तो मैं आऊँ या जाऊँ, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। বলছে শিব বাবা বলছেন যে আমি আসছি যাচ্ছি, আমাকে তো অনেক কাজ করতে হচ্ছে। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ, तो इसमें संशय की कोई बात ना आए। अपना काम है बाप को याद करना। শিব বাবা বলছেন যে মাঝে সাঝে আমি তো ব্রহ্মা বাবার শরীর থেকে বেরিয়ে যাই আর অনেক বাচ্চাদের কাছে চলে যাই, তাদের দ্বারা আবার সেবাও করাই, তাদের মধ্যে বল ভরে শক্তি ভরে তাদের দ্বারা সেবাও করাই। তো তোমাদের এতটা ভাবা দরকার নেই যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা কখন আসছেন কখন যাচ্ছেন। বলছি এটা তো আমার কাজ, अपना काम है बाप को याद करना। বলছে তোমাদের কাজ হচ্ছে বাবাকে স্মরণ করা। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया जोर से थप्पड़ लगा देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें आता हूँ। ब्रह्मा बाबार बहु जन्मेर अंतिम जन्मेरो अंतिम समय बाबा ओनार मध्य आसছেন। तो बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे न सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं यह बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते माँ में कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है, पहले तो निश्चय ही पक्का नहीं है। বলছি তোমরা যদি এইসব ফালতু প্রশ্ন বাবার কাছে করো তাতে বাবা বুঝতে পারছে যে তোমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চয় বুদ্ধি হওনি বাবার প্রতি। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों जाते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। तो नब्ज देखकर समझाना है, संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, यह तो खुशी रहती है ना। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है,
फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, राजाई स्थापन होती है तो मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उचित, तुम्हारी एक्टिविटी खूब भालो हुआ उचित। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। 2 नंबर, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। बच्चे सवार भ्रिकुटीते आत्मा के देखो और निर्भय होए बाबार सेवा करो। आज के वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरी रूपी कलिजुग पर्वत के समाप्त जे करबे से समर्थी बादशाह हबे। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फालो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। बाबा बोलছেন যে যেমন কারো সংস্কার স্বভাবের বশীভূত হয়ে যাওয়া, কোনো পরিস্থিতির বশীভূত হয়ে যাওয়া, কোনো ব্যক্তি বা বৈভব দিকে আকর্ষিত হওয়া বা কোনো রকম দিল শিকস্ত হয়ে যাওয়া, তো এই সমস্ত কমি কমজোরি রূপী কলিযুগ পর্বতকে সরিয়ে একদম এটাকে পুরো শেষ করো। বাবা বলছেন সবসময় মনে রাখো যে বিজয় আমার গলার হার। তো এই স্মৃতি দ্বারা সমর্থি চলে আসবে, আর এটাই বাপ দাদার স্নেহের রিটার্ন। তো যেমন সাকার বাবা স্থিতির দিক থেকে একদম পাওয়ারফুল স্তম্ভ হয়েছিলেন, সেরকম তোমরাও স্তম্ভ হয়ে থাকো। আজকের স্লোগান, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। বাবা বলছেন সাধন হচ্ছে সেবার জন্যে, আরাম পছন্দ হওয়ার জন্যে নয়। ওম শান্তি।